हेलो एवरीबॉडी, आई एम बैक। स्टार्ट कर रहे हैं। ऋतु क्या हुआ? So I'm back, Dr. KK Agarwal here, and you are watching Med Talks with Dr. KK Agarwal. This is going to be our 237th Med Talks and 1886th COVID episode. Let's have the headlines of the day. In a move likely to boost the use of Bharat Biotech's anti-COVID vaccine, the Drug Regulator Subject Expert Committee on Wednesday recommended doing away with the clinical trial mode for its use and making it a case of regular emergency use authorization. A highly infectious variant of coronavirus that has spread around the world since it was first discovered in Britain last year is 30 to 100% more deadly than previous dominant variants, suggests a study published in BMJ. Cambodia reported its first death from the coronavirus amid the biggest COVID-19 outbreak so far, after a 50-year-old man succumbed to virus after testing positive less than 2 weeks ago. 6 states, including Maharashtra, Kerala, Punjab, Karnataka, Gujarat, and Tamil Nadu, cumulatively account for 85.91% of the new corona cases in the country. Surgery should be delayed for 7 weeks after a patient tests positive for COVID-19, as surgeries takes place up to 6 weeks after diagnosis are associated with increased risk of death, according to a new global study. And we suggest after a vaccine, postpone any major surgery for 4 weeks and after COVID-19 for 8 weeks. Let's have the topic of the day. अपनी किडनी का मैं कैसे ध्यान रखूं? Today is World Kidney Day, and before I introduce you to my guest, let's wash our hands. S for Seedha, U for Ulta, M for Mutti, A for Angutha, N for Nakhun, and K for Kalai. Once you have done that, we can have now our Atithi, and our Atithi is Dr. Sanjay Kumar Agarwal, an expert in a kidney, professor and head of nephrology at All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. He is a faculty for the last 30 years. He is the TTS champion for South Asian region 2020 onward, chair of Global Burden of Disease India CKD group. Area of interest includes CKD, clinical transplantation, TB and hepatitis. Editor-in-Chief of Seminars in Dialysis and Indian Journal of Nephrology, Associate Editor of Indian Journal of Transplantation, Editorial Board Member of 16 journals, 286 research publications, and advisor. He had been the advisor to the National Organization and Tissue Transplant Organization. नमस्कार सर। नमस्कार। आज आपको रात्रि की भी मुबारकबाद और साथ में वर्ल्ड किडनी डे भी आज के दिन पड़ रहा है। So what we will like is we will like you to talk about what public and general practitioners should know about kidney. You can speak around for 15-20 minutes and then we will have question answer sessions. Sir. ठीक है, then we can start from the slide. Yes, Ritu ji. रितु जी, आपके पास स्लाइड्स होंगे? So we are doing this program on World Kidney Day. This is 16th World Kidney Day. It is started from 2006. Every time there is a theme, and this time theme of World Kidney Day is living well with kidney disease. But हर बार किडनी डिजीज वर्ल्ड किडनी डे में बैकग्राउंड में हमेशा थीम यही होता है, प्रिवेंशन ऑफ किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज. सो वी हैव गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. कॉमन मैन के लिए क्रॉनिक किडनी डिजीज मतलब किडनी डिजीज है
या ग्लूमरुलर फिल्ट्रेशन रेट लेस देन 60 ml है और वो 3 महीने से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है, तब उसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज बोलते हैं। और किडनी डिजीज का एविडेंस, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, किडनी डिजीज का एविडेंस मतलब मार्कर ऑफ किडनी डैमेज, क्योंकि अब तो ब्लड में हो सकते हैं जो रेज्ड सीरम क्रिएटिनिन हो, या यूरिन में हो सकता है जो इंक्रीज प्रोटीन हो, या कोई रेडियोलॉजी का टेस्ट हो सकता है लाइक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज अल्ट्रासाउंड में हो। इनमें से कोई भी अगर होता है और वो 3 महीने से ज़्यादा परसिस्ट करता है और रिवर्सिबल नहीं है, मतलब मरीज को क्रॉनिक किडनी डिजीज है। नेक्स्ट स्लाइड। This is part of the global burden of disease, and this is little busy slide, but only want to say that the disability life year, which is called daily, has increased in last 15-20 years from chronic kidney disease place from 30, now it is 20. So magnitude of chronic kidney disease and its severity both has increased, causing more number of percentage of daily in association with other non-communicable diseases and communicable diseases. Next slide. तो कॉमन आदमी क्या करे? उसका एम है कि या तो किडनी डिजीज हो ही नहीं, पहली बात। अगर किडनी डिजीज वो ऐसे रिस्क ग्रुप में है कि किडनी डिजीज हो जाती है, तो उसकी डायग्नोसिस किडनी डिजीज की जितनी जल्दी होगा उतना ही जल्दी हम उसको और आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। और एक बार अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो हम उसको प्रॉपर मैनेज करें ताकि वो एडवांस स्टेज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज में ना जाए जिसमें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। तो ये 3 बातें मोटी मोटी अगर कॉमन आदमी समझेगा तो उसको, जो इस बार वर्ल्ड किडनी डे का मोटो है लिविंग वेल विद किडनी डिजीज, को कर पाएगा। लेट अस सी कि किडनी डिजीज ना हो इसके लिए क्या करें। नेक्स्ट स्लाइड। एक बहुत जो कि मरीज भी कर सकता है और सोसाइटी को भी करना चाहिए, एंटीनेटल केयर में मदर की केयर बहुत जरूरी है ताकि लो बर्थ वेट बेबी नहीं हो। आज के टाइम पे इंडिया में 1/3 लाइव बर्थ में लो बर्थ वेट बेबी होते हैं, और ये लो बर्थ वेट बेबी विद टाइम एंड एडल्टहुड में हाइपरटेंशन, क्रॉनिक किडनी डिजीज और डायबिटीज का रिस्क ज़्यादा होता है। तो अगर एंटीनेटल केयर में मदर की केयर करेंगे, लो बर्थ वेट प्रिवेंट करेंगे, हम आगे क्रॉनिक किडनी डिजीज प्रिवेंट करेंगे। रेगुलर एक्सरसाइज करें, वेट नहीं बढ़े, डायबिटीज कंट्रोल करें, बैलेंस डाइट लें, वेट नहीं बढ़ाएं, ब्लड प्रेशर ना होने दें, या होए तो आप एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट से कंट्रोल करें। रेगुलर एडुकेट अमाउंट में पानी लें, मतलब 1.5 लीटर से 2.5 लीटर के बीच में लें ताकि यूरिन कंसंट्रेटेड नहीं हो। यूरिन कंसंट्रेटेड होगा, जितने टॉक्सिन्स बॉडी के होंगे, जितनी दवा मेटाबोलाइज होके यूरिन में जाएंगी, वो सब कंसंट्रेट होके किडनी को डैमेज करने का रिस्क करती है। कोई दवा अपने आप नहीं लें। दवा नहीं लेंगे तो जो दवा से रिलेटेड किडनी डैमेज हैं, जैसे पेन किलर्स हैं, एंटीबायोटिक हैं, ये या जो ओवर द काउंटर ड्रग हैं, जैसे कुछ अनट्रेंड लोगों से आयुर्वेदिक मेडिसिन लें जो क्वालिफाइड नहीं है, तो ये सब किडनी को डैमेज कर सकती है। इसके अलावा योगा, मेडिटेशन करें, स्ट्रेस को कम करें आज की लाइफ में। ये सारी 5-6 चीजें जो हैं ये किडनी डिजीज को होने से बचाएंगी। अब जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें किडनी डिजीज होने का रिस्क है, हमारा सोसाइटी का कर्तव्य है कि डॉक्टर्स का कि उसकी डायग्नोसिस जितनी जल्दी से जल्दी करें ताकि उसको प्रॉपर मैनेज कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड ये शो करती है कि अर्ली डायग्नोसिस के लिए क्या करें। 2 टेस्ट, यूरिन में प्रोटीन का टेस्ट और ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन, ये 2 टेस्ट सफिशिएंट है मोर देन 90% केसेस ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज को डायग्नोज करने के लिए। अब क्वेश्चन आता है ये टेस्ट हम किस में करें?
जितने भी पेशेंट डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर हैं या किसी की फैमिली मेंबर में किडनी डिजीज हो, हाथ पैरों में सूजन आ रही हो, अगर किसी को बहुत ही माइनर चोट लगने से फ्रैक्चर हो रहा है, मतलब उसको बोन डिजीज है जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज में होती है, या किसी को खून की कमी है, कारण पता नहीं लग रहा है, किडनी डिजीज का संभावना होती है, उम्र 60 से ज्यादा है, या इसके अलावा कोई भी यूरिन की कंप्लेंट हो, यूरिन करने में दर्द होता है, कम यूरिन आ रहा है या ज्यादा यूरिन आ रहा है, या यूरिन में कोई सब्सटेंस ब्लड आ रहा है या पस आ रहा है, इनमें से ये जो चीजें हैं इनका टेस्ट यूरिन प्रोटीन और सीरम क्रिएटिनिन से करना जरूरी है। साल में एक बार करेंगे, अगर इसमें दोनों टेस्ट में गड़बड़ आती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, 6 महीने में या हर 3 महीने में, डिपेंडिंग अपॉन नीड करना पड़ सकता है। अब अगर अर्ली डायग्नोसिस कर लेंगे तो उसको मरीज को मैनेज करने में किडनी डिजीज की माइल्ड स्टेज से एडवांस स्टेज जाने में रोका जा सकता है या डिले करा जा सकता है। उसके लिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्लाइड। जब अर्ली डायग्नोसिस क्रॉनिक किडनी डिजीज की हो जाती है, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर चूंकि मुख्य कारण है, उनका अच्छा कंट्रोल करें। ज़्यादातर मरीज क्रॉनिक किडनी डिजीज को रेगुलर चेकअप की ज़रूरत होती है। जिंदगी भर किसी को 3 महीने या 6 महीने, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी कितनी सीवियरिटी है, रेगुलर दवा लें, रेगुलर टेस्ट करा के चेकअप कराएं। अगर स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगी। डाइट और ड्रग का परहेज डॉक्टर के हिसाब से करें, क्योंकि डाइट से किडनी डिजीज बढ़ती है, और जो भी दवाएं हम लेते हैं एक तो वो किडनी को डैमेज कर सकती हैं, दूसरी सारी दवा ज़्यादातर किडनी से एक्सक्रीट होती हैं, तो किडनी डिजीज के मरीज में दवा कुछ मना भी होती हैं और कुछ दवाओं की डोजेस कम हो जाती हैं, तो डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से ड्रग और उसकी डोजेज लें। पॉजिटिव एटीट्यूड और एक अर्ली स्टेज पे अर्ली नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाने से आगे का ट्रीटमेंट प्लान हो सकता है, जिससे कि किडनी डिजीज को अर्ली स्टेज से लेट स्टेज में जाने से रोका जा सके। तो अगर ये 3 बातों का ध्यान रखें, हम किडनी डिजीज को बचाएं। अगर रिस्क है तो अर्ली डायग्नोसिस, और अगर डायग्नोस हो गया है तो फर्दर डैमेज से रोकने। इसमें डॉक्टर और मरीज दोनों का अगर कंट्रीब्यूशन होगा तो हम किडनी डिजीज को मैनेज आराम से कर सकते हैं। और जो इस साल का वर्ल्ड किडनी डिजीज का मोटो है कि लिविंग विद किडनी डिजीज, वो संभव हो पाएगा। Mritul, next guy. Okay. So thank you, Dr. Agarwal, for this particular basics of kidney. So I will try to go back to some more basics. कि अगर डायबिटिक में और हाइपरटेंशन है मान लीजिए, तो किडनी खराब क्यों होती है? डायबिटीज का हाई ब्लड शुगर से किडनी का जो फिल्ट्रेशन वाली यूनिट होती है ग्लोमेरुलस, उसमें हाइपर फिल्ट्रेशन होता है, और जो डायबिटीज से एडवांस ग्लाइकोजन एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो ग्लोमेरुलस के मेसेंजियम को डैमेज करते हैं। उसके डैमेज से फर्दर हाइपर फिल्ट्रेशन होके किडनी कुछ इस टाइप से बनी होती है कि अगर उस पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है तो उसमें ग्लोमेरुलस के एरिया में ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस होने लगती है। जब थोड़ी और ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस होती है तो रिमेनिंग किडनी पे वो फर्दर हाइपर फिल्ट्रेशन होता है, और ये विशेष साइकिल चलती रहती है जब तक कि किडनी डैमेज क्रॉनिक किडनी डिजीज की अर्ली स्टेज में नहीं हो जाए। जैसे हम लोग हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, लिवर में we have a role of inflammation as a cause of in adipose cell, in hepatic cells. Is there any inflammation occurring in kidney before sclerosis? Is it direct sclerosis or is it inflammation based? ये डिजीजेस पे डिपेंड करता है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन में इन्फ्लेमेशन से ज़्यादा स्क्लेरोसिस का कंपोनेंट ज़्यादा होता है,
और कुछ डिजीजेज जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन शुरू में होता है, देन इट गोज टू स्क्लेरोटिक स्टेज। ओके, सो अभी हमने बात करी कि क्रिएटिनिन एंड प्रोटीन, अगर दोनों में से मुझे एक टेस्ट करना है, विल द माइक्रो amount of protein, macro, this is moderate macroalbuminuria, or a albumin between 30 to 300, will it come earlier than rise in creatinine? Yes, बहुत सारी ऐसी इलनेसेस हैं जिनमें माइक्रोएल्बुमिनुरिया पहले होता है एंड क्रिएटिनिन रिमेन्स नॉर्मल, दैट इज व्हाई जीएफआर रिमेन्स नॉर्मल। इसीलिए स्टेज 1 और स्टेज 2 को अगर आप देखेंगे तो उसमें जीएफआर इज नियर नॉर्मल। स्टेज 1 में तो नॉर्मल से इज अबव 90 ml, बट स्टिल वी कॉल क्रॉनिक किडनी डिजीज बिकॉज देयर इज ए माइक्रोएल्बुमिनुरिया। सो क्रॉनिक किडनी डिजीज में 2 कंपोनेंट लेते हैं अकॉर्डिंग टू जीएफआर, स्टेजेस G1 से लेके G5 हैं, और एल्बुमिनुरिया को लें तो A1, A2, A3 हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ एल्बुमिनुरिया। So in any patient of chronic kidney disease, we needs to add what is G stage and what is A stage. So a large number of patients are in A1, A2 with G1. G1 means GFR is normal, which means a large number of disease microalbuminuria comes earlier than the fall in glomerular filtration rate or the rise in serum creatinine. So why I'm saying is that अगर माइक्रोएल्ब्यूमिन प्रेजेंट है तो हम प्रिज्यूम करते हैं कि पेशेंट को रेटिनोपैथी भी होगी बिकॉज देयर इज एंडोथेलियल डिसफंक्शन, एंड हम प्रिज्यूम करते हैं कि उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होगा, उसको कोरोनरी आर्टरी डिसीज भी हो सकती है। तो हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कोरोना में हमने ये देखा है कि जिन लोगों का सीआरपी बेसलाइन ज़्यादा है, यानी कि उनको लो लेवल लो ग्रेड सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन है, जब उनको कोरोना होता है तो हाई ग्रेड सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है। उस सिचुएशन के अंदर में क्या हमने ये देखा कि जिन लोगों को माइक्रोएल्ब्यूमिन पॉजिटिव था उन लोगों को कोरोना खतरनाक हुआ, ऐसा कोई स्टडी है क्या? नहीं, एक्चुअली माइक्रोएल्बुमिनुरिया इज मोर कंसिस्टेंट इन ए क्रॉनिक स्टेज, व्हाट वी कॉल persistent microalbuminuria. Single reading of positive microalbuminuria does not have same significance as persistent microalbuminuria. And for chronic kidney disease, taking stage A1, A2, it should be a component on the basis of a persistent microalbuminuria. So is there any evidence कि जिन लोगों को CKD है persistent वाली, उन लोगों को अगर कोरोना हुआ तो उस कोरोना के अंदर में उनकी क्या सिवियरिटी बढ़ी? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट AGN, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्यूट फेलियर, आई एम टॉकिंग अबाउट पेशेंट्स हु आर नॉन CKD. व्हाई आई एम गोइंग टू लिंक इट? आई एम गोइंग टू लिंक इट टू वैक्सीन आफ्टर दैट. सो मैं बेसिकली जा रहा हूँ, अगर किसी को CKD है तो उनको कोरोना होने के बाद में क्या होता है? जो अगर आप जो हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का डाटा जो कि अभी पब्लिश नहीं है, बट जो वेस्टर्न डाटा पब्लिश है, उसमें जो रिस्क फैक्टर ऑफ मॉर्टेलिटी इन कोविड है, उसमें आफ्टर द एल्डरली एज सेकेंड कॉमनेस्ट रिस्क फैक्टर इज क्रॉनिक किडनी डिजीज. इवन हाइपरटेंशन आल्सो कम्स लोअर. So which means that a person who has got chronic kidney disease and if he develops COVID, then risk of severe COVID and mortality is higher than the patient who does not have chronic kidney disease. Okay. So अब मेरा पेशेंट CKD का है, मैंने उसको वैक्सीन दिया, मैंने उसके वायरस का प्रोटीन मसल में डाल दिया, मसल में डालने के बाद में उसको IgE एनाफिलैक्सिस नहीं हुई, एंटीबॉडीज अभी IgG नहीं बने, अभी उसकी बॉडी में वायरस सेल में घुस के TH1 रिस्पॉन्स आ गया जिसमें गामा इंटरफेरॉन, IL-6 और TNF अल्फा बढ़ेंगे। तो क्या CKD में ये रिएक्टोजेनेसिटी ज्यादा हो सकती है? कैन CKD पेशेंट्स ओवर रिएक्ट टू इम्यून इन्फ्लेमेशन टू ए नॉर्मल वैक्सीन? नहीं, compared to yeah, go ahead. Compared to
compared to people who are not CKD, क्या ऐसे पेशेंट्स को CRP ज्यादा बढ़ेगा, क्या इनको फीवर ज्यादा आएगा, क्या इन पेशेंट्स को ट्रांजिएंट इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा? नहीं, क्रॉनिक किडनी डिजीज में जो इन्फ्लेमेटरी स्टेज है, इस क्रॉनिक किडनी डिजीज एज सच इज टेकन एज ए इम्यूनो कंप्रोमाइज स्टेट. सो बिकॉज ऑफ दैट the evidence of acute phase reactant is usually lower in chronic kidney disease in any given situation, and that holds valid for a COVID vaccination also. So, and we do not know the response of vaccine in chronic kidney disease yet. The trial hasn't included chronic kidney disease patient in the efficacy or assessing the efficacy of vaccine. बट अभी तो हम CKD में दे रहे हैं आराम से, हम तो वैक्सीनेशन लगा रहे हैं सबको हाई रिस्क में. हाँ, नहीं, हम लोग दे रहे हैं बिकॉज CKD comes in a higher risk group. What we can say is a comorbidity associated, but what will be the response, that we do not know. So as on today in AIIMS, जितने लोगों को CKD वालों को वैक्सीन लगा है, उनमें कोई रिएक्शन पाई गई है क्या? इम्यून रिस्पांस, हाइपर इम्यून रिस्पांस? अभी ये एक्चुअली इन्होंने CKD के लिए अभी ही खोला है, तो देयर आर नॉट टू मेनी पेशेंट टू माय नॉलेज, और वी हैव नॉट कैप्चर्ड दोस पेशेंट ऑफ CKD हु हैज बीन वैक्सीनेटेड. सो दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल एज ऑफ नाउ. नहीं, प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत लोग हैं, सारे पेशेंट जिसके मेरे CKD के पेशेंट्स हैं, सबको मैंने वैक्सीन के लिए भेजा है, सबको वैक्सीन लग रहे हैं. लेकिन हमने उसको असेस नहीं किया है कि व्हाट इज द रिस्पांस रेट. तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, what I am doing, I wanted to know whether I am correct or not. See, if a patient has a M1 macrophage response, I call them as dimple in a pimple response in heart. I'm talking about atherosclerosis with the rupturing plaque. उसका plaque is more like a pimple, और उसमें एक dimple आ गया है जो फटने वाला है because of M1 macrophages. Vaccine can precipitate M1 response, therefore it can trigger an acute MI. Yesterday, we saw a couple of cases in the Western literature where they have said vaccine can also cause thrombogenic reaction. It can also increase D-dimer levels in the body for few days. उसके साथ में, so हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी हम कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं, उनको हम एस्पिरिन, स्टैटिन और कॉल्चिसिन की दवाई देके वैक्सीन लगवा रहे हैं. If you are comorbid, एस्पिरिन थ्रोम्बोजेनिक को रोकेगा, कॉल्चिसिन इन्फ्लेमेशन को रोकेगा बिकॉज इट इज न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी पाथवे इनहिबिटर, एंड स्टैटिन अगर कोई प्लेक होगा तो स्टेबलाइज कर देगा. तो अगर हम इसको देते हैं तो CKD में भी क्या इसको दिया जा सकता है? I will say this will be probably off-label use of all the three drugs. Yes. I'm not talking about that. हम लोग फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, नुकसान तो नहीं करेगा, हम फायदे की बात ही नहीं कर रहे. हाँ, नहीं, these three drugs for a short-term period, peri vaccine will not do any harm, but whether it will be beneficial or not, that needs to be assessed in a proper scientific trial basis. इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? What we are doing is we are seeing the CRP response rise after the vaccine. So we normally expect CRP will rise to 3 times the baseline after 48 hours. That's the normal response of a CRP should happen to any foreign body, and the CRP should come back to normal within 3 days, within 4th day. That's the normal cycle of a CRP. तो CRP 4 घंटे में बढ़ना चालू होता है, 36 घंटे में पीक पे जाता है और 17 घंटे में 0 लेवल पे आ जाता है. That's the normal reaction of a acute phase reactant of a CRP to any allergen, to any antigen. So अब जैसे कल एक लेडी लैंसेट में छपा है, 65-year-old diabetic hypertensive, and she developed high-grade fever. So normally interferon, gamma interferon fever should not be more than 101. So she developed 103 fever. CRP rose to 65. D-dimer rose to 4,000. And her CRP came back to near normal on 4th day. So हम क्या कर रहे हैं? हमने 2 ग्रुप को ले लिया, एक को हम ये ACS दे रहे हैं, एक को नहीं दे रहे हैं. तो जिसको हम ACS दे रहे हैं उनका CRP नहीं बढ़ रहा, उनका CRP शूट अप नहीं हो रहा. So 3 गुना CRP बढ़ेगा, that's all right, but the CRP will not rise to 30, 40, 50, 60, 70. So hyper immune response को हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं. जी. So मेरा पहला सवाल है कि कॉल्चिसिन का कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन CKD में तो नहीं है? नहीं, ऐसे कोई
यूरिक एसिड भी बढ़ेगा, उसको भी कम करेगा ये। हाँ, अभी हमारे यहाँ पे कार्डियोलॉजी के अंदर में अप टू डेट के अंदर में नई गाइडलाइंस आई हैं, प्रैक्टिसिंग चेंजिंग गाइडलाइंस। उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि नाउ colchicine should be given in every heart patient with blockages who has a stable coronary artery disease, everybody, for low grade cardiac inflammation। जो वो फोम सेल्स की बात कर रहे हैं, बोले अगर आप लो ग्रेड कार्डियक इन्फ्लेमेशन को खत्म करोगे तो आपका प्लेग कभी रप्चर नहीं करेगा। तो उसमें इसलिए मैं पूछ रहा था कि सीकेडी में क्या इन्फ्लेमेशन है कि नहीं, क्योंकि अगर सीकेडी में इन्फ्लेमेशन या माइक्रोथ्रोम्बाई का रोल है तो हो सकता है सीकेडी में हम लोग आगे जाके colchicine का रोल भी देखें। CKD is does considered at a microinflammation going on, but the degree of inflammation in CKD and cardiac disease may be different. हमारा पाथवे है कि क्या न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी पाथवे या इंटरलुकेंस या TNF अल्फा सीकेडी में इन्वॉल्व होते हैं। जो सारे इंटरलुकेंस, जो सारे कोविड में हमने सीखे इन्फ्लेमेशन के अंदर में, क्या उनका रोल सीकेडी में है कि नहीं है? नहीं, एलोन सीकेडी में with not a immunological cause of CKD में there is no significant role. Okay, immunological cause in the sense that it is not a systemic disease, it's not a connective tissue disorder, it is not a lupus, it's not rheumatoid arthritis, it's not. Now we come back to some basic questions for the public. सबसे पहला एक सवाल है जो पूछा है वानिक जी ने कि मेरे को डायबिटीज है और मेरा माइक्रो एल्ब्यूमिन 690 है, तो क्या करूं? नहीं, एक तो ये है कि ये लोगों का मिसनोमर है कि माइक्रो एल्ब्यूमिन इज डिफरेंट देन द एल्ब्यूमिन। नाउ इफ एनीबॉडी इज हैविंग 690, देन इट इज नॉट ए माइक्रो एल्ब्यूमिन, इट इज अ डिपिस्टिक पॉजिटिव प्रोटीनूरिया। So it is no more in a microalbumin range. It should not be called microalbumin. Rather, it is a significant proteinuria. So if he is not, if he is not on non-specific anti-proteinuria drug like ACE inhibitor or receptor blocker, he should be started on these drugs irrespective he is hypertensive or not, because that will prevent the progression of albuminuria. तो इनके पेशेंट्स में जिनको 300 से ज्यादा प्रोटीन आ गया, तो क्या हम डेपाग्लिफ्लोजिन दे सकते हैं? हाँ, उनको दे सकते हैं। सो वो डायबिटीज में भी काम करेगी और किडनी के प्रोटीनूरिया को भी रिवर्ट करेगी। दूसरा है, अगर किसी को पेन किलर लेना है, दर्द की दवाइयां लेनी है, तो कोई क्यूमुलेटिव डोज होती है क्या? कौन सी दवाइयां लें? लोग घर में टॉफी की तरह पेन किलर खाते हैं। उसका कुछ बेसिक प्रिंसिपल है। नंबर 1 तो ये कि जो कॉम्बिनेशन वाली पेन किलर हैं वो अवॉइड करना चाहिए, लाइक कॉम्बिफ्लेम जिसमें ब्रूफेन या पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन है। पैरासीटामोल इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट सेफेस्ट पेन किलर। इफ इट इज नॉट, पेन इज नॉट गेटिंग कंट्रोल विद सिंपल पैरासीटामोल, before going to non-steroidal anti-inflammatory, we should see that the dose of paracetamol is adequate, because as a painkiller, its dose is 650 milligram to 1000 milligram. If that also doesn't control, then simple without combination painkiller can be taken, like simple brufen or simple diclofenac. It's not a contraindication. And if the pain is severe, then instead of going to the combination of painkiller, we advise to take tramadol type of a drug, which are safer and little more stronger as a painkiller, not as an anti-inflammatory as compared to combination drugs. What about nimesulide? उसका क्या रोल है? Nimesulide is same as any other non-steroidal anti-inflammatory, and in that way, it is a single drug, so its safety is better than the combination drug. So डॉक्टर एसके अग्रवाल ने क्लियर कट बोला है कि सिंगल ड्रग लीजिए, ना कि कॉम्बिनेशन। 2 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन इज बैड देन ए सिंगल ड्रग उसके साथ में। सो ऋषि से डॉक्टर गीता जी पूछ रही हैं, हाउ डज पेन किलर्स अफेक्ट किडनी? दैट्स आंसर इज गिवन।
फाइब्रोमाइल्जिया में सिर्फ पेन किलर्स दिए जाते हैं, कितने लंबे पेन किलर्स खाए जा सकते हैं, कितने दिनों तक पेन किलर्स दिए जा सकते हैं? अगर पैरासिटामोल पे डिपेंड है, देन प्रोबेबली देयर इज नो लिमिट as far as safety to the kidney is concerned. But if they are dependent on non-steroidal anti-inflammatory, then probably depend whether they are taking regular. We should avoid regular drugs in the terms कि daily नहीं लें, उसको जितना शिफ्ट कर सकते हैं इंटरवल उतना बढ़ा लें. अगर वैसा करेंगे, मतलब जितना कम से कम पेन किलर में उनकी मोबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इज बेटर, दे शुड टेक इट. मेरा क्रिएटिनिन 3 पे पहुंच गया है, तो मैं उससे क्या थोड़ा सा रिवर्स कर सकता हूं, और क्या मैं 3 पे रोक सकता हूं कि ये 3 से धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा? क्या इसको रोका जा सकता है? किसी भी पेशेंट में अगर क्रिएटिनिन हाई होता है तो हमारा फर्स्ट एम होता है टू सी कि व्हाट इज द रिवर्सिबल फैक्टर इन दैट पर्टिकुलर पेशेंट. अगर उस पेशेंट में रिवर्सिबल फैक्टर लाइक इन्फेक्शन है, या कोई रिसेंट नॉन स्टेरॉइडल लिया है, या उनको डिहाइड्रेशन या वॉल्यूम लॉस है, देन वी शुड ट्रीट रिवर्सिबल फैक्टर. और अगर फैक्टर हैं तो फिर क्रिएटिनिन जितने पे आया था उससे कम हो सकता है. फिर उनका जो बेसलाइन क्रिएटिनिन था वहां तक भी पहुंच सकता है. से फॉर एग्जांपल अगर 1.5 था और कोई एक्यूट फैक्टर से 3 हो गया है, अगर एक्यूट फैक्टर को करेक्ट करेंगे तो वापस भी हो सकता है. लेकिन अगर प्राइमरी क्रॉनिक किडनी डिजीज से विदाउट एनी एक्यूट फैक्टर क्रिएटिनिन 3 है तो उसको वापस करना शायद संभव नहीं है. अगर प्रिकॉशन लेंगे और जो डाइट और ड्रग का डॉक्टर की एडवाइस है अगर वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो बहुत टाइम तक 3 पर ही रोका जा सकता है. कोई ऐसा नंबर्स है कि आप 10 साल तक 3 पे रोक सकते हो? जो ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिजीज एक ग्रुप ऑफ डिजीजेज हैं जिसमें प्रोटीनूरिया ज़्यादा नहीं होता है, हाइपरटेंशन ज़्यादा नहीं होता है, उसमें हम लोगों ने देखा है समटाइम पेशेंट 2 या 3 क्रिएटिनिन पे सालों उतने ही क्रिएटिनिन पे बना रहता है, क्योंकि प्रोटीनूरिया एक मेजर फैक्टर फॉर प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिजीज है, हाइपरटेंशन एक मेजर फैक्टर है, और ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिजीज में ये दोनों कम होते हैं और नहीं भी होते हैं बहुत से पेशेंट में. And those patient progresses very very slowly to the extent कि sometimes for many years they stay on a same value of creatinine. So याद रखिए, सवाल बड़ा सिंपल है, कहीं मेरी किडनी में प्रोटीन तो बाहर नहीं आ रहा. एक ही सवाल अभी तक बार बार निकल के आ रहा है कि कहीं मेरी किडनी से प्रोटीन बाहर तो नहीं आ रहा. अब आ रहा है तो प्रोटीन खाऊं कि नहीं खाऊं? प्रोटीन अगर मेरी किडनी से बाहर निकल रहा है तो दवाइयों के अलावा प्रोटीन खाऊं कि कम खाऊं कि ना खाऊं? जब यूरिन में प्रोटीन लॉस होता है तो अगर हम प्रोटीन इनटेक बढ़ाएंगे तो एक साइड से बढ़ाएंगे, दूसरी साइड से लॉस हो जाएगा. और जब वो प्रोटीन लॉस थ्रू ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन से लॉस होता है, ड्यूरिंग दैट पैसेज इट फर्दर डैमेज द किडनी. तो प्रोटीन लॉस अनलेस वो न्यूट्रिशन इफेक्ट नहीं कर रहा है, प्रोटीन लॉस को प्रोटीन बढ़ा के डाइट में कंपनसेट नहीं करना चाहिए, वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है. इट विल कॉज मोर अर्ली डैमेज टू द किडनी एंड फास्टर प्रोग्रेशन. इसीलिए जब क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट को हम लोग रिलेटिवली लो प्रोटीन डाइट बताते हैं, जो कि नॉर्मल पेशेंट अगर 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से है तो क्रॉनिक किडनी डिजीज को हम 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन बताते हैं. अब मेरा प्रोटीन तो मैंने रोक लिया, दवाइयाँ भी दे दी प्रोटीन को कम करने की, नई दवाइयाँ भी आ गई हैं. अब कैल्शियम कितना दूं? अब मैं जो बॉडी में डैमेज हो रहा है उसमें मैं क्या क्या चीज़ें लोगों को दूं? कैल्शियम कितना दूं, विटामिन डी कितना दूं, और बाकी चीज़ों को कैसे ठीक करूं? इसमें थोड़ा बहुत किस किडनी की स्टेज पे क्रिएटिनिन है वो डिसाइड करता है, किस टाइप की किडनी डिजीज है वो डिसाइड करती है. फॉर एग्जांपल ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिजीज में हम पानी नहीं रोकते हैं, उसको वही बोलते हैं कि आपको जितनी प्यास लगे उतना पानी पी लीजिए. ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, तो सॉल्ट हम बहुत नहीं रोकते हैं. हम कहते हैं कि एक्सेस सॉल्ट मत लें, 3 ग्राम से 4 ग्राम तक सॉल्ट लें, क्योंकि वो अगर सॉल्ट रोकेंगे तो फिर उनको निगेटिव सॉल्ट से ब्लड प्रेशर लोअर साइड चला जाएगा.
कैल्शियम और फॉस्फेट को ब्लड में कैल्शियम फॉस्फेट को टेस्ट करके उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है कि बॉडी में सीरम कैल्शियम और सीरम फॉस्फेट का स्टेटस क्या है। एक इम्पॉर्टेंट चीज हम बार बार बात कर रहे हैं ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिसीज की, थोड़ा समझाएं लोगों को कि ये क्या मतलब है इसका, ये कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसको हम कि इंस्टेड ऑफ उनका ट्यूबुलर डिसफंक्शन होता है इसलिए पॉलीयूरिया होता है और उनका पेशाब ज्यादा होता है, कौन से ऐसे पेशेंट्स होते हैं? तो दो ब्रॉडली दो तरह की डिजीज हैं। एक तो मेडिकल डिजीजेज में एक तो ग्लोमेरुलर डिजीज है जिसमें प्राइमरीली ग्लोमेरुलस इफेक्ट होता है और ग्लोमेरुलस के पैरेलल ट्यूब्यूल डैमेज होता है। तो चूंकि ग्लोमेरुलस इफेक्ट होता है तो उसमें फिल्ट्रेशन होने से यूरिन का आउटपुट कम होता है और ग्लोमेरुलर डिजीज में सॉल्ट का सोडियम एब्जॉर्प्शन किडनी से ज़्यादा होता है, तो ग्लोमेरुलर डिजीज यूजुअली हाई ब्लड प्रेशर से एसोसिएटेड होती है। इसका एग्जाम्पल है जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ भी ग्लोमेरुलर डिजीज मानी जाती है। जितनी ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हैं वो सारी ग्लोमेरुलर डिजीज हैं। जो हेरिडिटी डिजीजेज हैं लाइक एल्पॉर्ट सिंड्रोम ये सब हैं। इसके अपोजिट अगर ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल देखें तो उसमें ग्लोमेरुलस प्राइमरीली इफेक्ट नहीं होता है, प्राइमरीली ट्यूब्यूल इफेक्ट होते हैं। और हमें मालूम है कि ट्यूब्यूल का फंक्शन फ्लूइड एब्जॉर्ब करना, बॉडी का सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करना है। तो जब ट्यूब्यूल डैमेज होते हैं और फिल्ट्रेशन कुछ डिग्री तक मेंटेन है तो ट्यूब्यूल फ्लूइड एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए यूरिन आउटपुट बना रहता है या ज़्यादा रहता है। और चूंकि ग्लोमेरुलस प्राइमरीली डैमेज नहीं है, ट्यूब्यूल डैमेज है, तो वो एक्स्ट्रा सोडियम एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता है। इसमें जो कॉमन डिजीजेज इंडिया में है जैसे रीनल स्टोन डिजीज है, दैट इज ए ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिजीज। जो ड्रग इंड्यूस डैमेज होती हैं जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये भी ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिजीज के ग्रुप में आता है। इसमें प्राइमरीली ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डैमेज होता है। तो ये जितनी टॉक्सिक नेफ्रोपैथी होती हैं टॉक्सिन से या हैवी मेटल से, ये सारी डिजीजेज ट्यूब्यूल्स डैमेज करती हैं। ऑब्स्ट्रक्शन भी एक तरह से ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिजीज है, उसमें भी ब्लड प्रेशर हाई बहुत कम होता है और यूरिन आउटपुट अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मल होता है अगर इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है। सो ध्यान रखिए, डॉक्टर एस.के. अग्रवाल ने बड़ा क्लियर कट कहा है कि पेशाब ज्यादा आ रहा है, लोग समझते हैं ऑब्स्ट्रक्शन है तो पेशाब कम होना चाहिए। द आंसर इज नो, ऑब्स्ट्रक्शन में पेशाब ज्यादा आएगा। अगर आपको नॉर्मल से ज्यादा पेशाब आ रहा है तो भी आपको किडनी की डिसीज हो सकती है, किडनी के ट्यूब्यूल्स की डिसीज हो सकती है। अब जब पेशाब ज्यादा आ रहा है तो कुछ लोगों को 24 घंटे में ज्यादा आता है, कुछ लोगों को सिर्फ रात में ज्यादा आता है। जिन लोगों को सिर्फ रात में पेशाब ज्यादा आता है और जिन लोगों को 24 घंटे पेशाब ज्यादा आता है, दोनों में क्या फर्क है? अगर यूरिन ज्यादा आता है, बहुत सारे पेशेंट कहते हैं हमें यूरिन ज्यादा आता है, तो हम लोग पहले एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि ज्यादा बार जाना पड़ता है या अमाउंट में ज्यादा आता है। अगर अमाउंट में ज्यादा आ रहा है, वो भले ही ज्यादा बार में हो या कम बार में हो, वो एक ग्रुप ऑफ डिजीज में चला जाएगा जिसको पॉलीयूरिया कहेंगे। अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी है बट अमाउंट ज्यादा नहीं है तो वो फ्रीक्वेंसी है। अगर वो खाली नाइट में ज्यादा बार उठना पड़ता है और दिन में नहीं है तो उसको हम लोग नॉक्चूरिया बोलते हैं। ये तीनों ग्रुप ऑफ के कॉजेज अलग अलग हैं। जो लोग रात में पेशाब के लिए उठते हैं उनको हम कहते हैं, उनके क्या क्या कारण होते हैं? बिकॉज दैट्स वन पीपल कॉमन आस्क कि रात के समय पेशाब के लिए उठना पड़ता है, डिप्रेशन है, प्रोस्टेट है, स्लीप एपनिया है कि क्या है? हाँ, तो उसके कुछ 2-3 मेजर कारण है। एक तो ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, वो चाहे प्रोस्टेट की वजह से हो चाहे ब्लैडर नेक नैरोइंग की वजह से हो। सेकेंड है क्रॉनिक किडनी डिजीज, बिकॉज नॉर्मल क्या होता है कि नॉर्मल एंटी डायरेटिक हार्मोन नाइट में ज़्यादा होता है, दैट इज ए नॉर्मल फंक्शन, सो दैट कि नाइट में यूरिन आउटपुट कम हो और नॉर्मल आदमी को बार बार ना उठना पड़े। क्रॉनिक किडनी डिजीज में चूंकि ट्यूब्यूल काम करना बंद कर देते हैं तो सेम हार्मोन
is not able to concentrate the urine. इस वजह से यूरिन का अमाउंट ज़्यादा होता है, इसलिए रात में बार बार उठना पड़ता है. इसलिए नॉक्चूरिया इज इनफैक्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज. सो बहुत सारे लोग, अगर आपको पेशाब ज़्यादा होता है रात में, ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, किडनी की खराबी भी हो सकती है, अपने डॉक्टरों से ज़रूर बात करें उस सिचुएशन के अंदर में. अगर मेरे को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ कंट्रोल करनी है, तो क्या अगर मैं आज भी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेता हूँ, शुगर के अलावा अगर मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, तो क्या आगे मेरी किडनी बच सकती है? और अगर हाँ, तो ब्लड प्रेशर कितना रखूँ और फास्टिंग शुगर कितना रखूँ या HbA1c कितना रखूँ? तो अगर हाइपरटेंशन और डायबिटीज में हाई ब्लड प्रेशर इन हाइपरटेंशन एंड हाई ग्लूकोज इन डायबिटीज आर द की फैक्टर जो कि डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन ऑफ डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर को आगे क्रॉनिक किडनी डिजीज होगी कि नहीं. ब्लड प्रेशर की जहाँ तक बात आती है, 130/75 और 130/70 is adequate blood pressure to prevent development of a chronic kidney disease just because of blood pressure. Or in diabetes, we usually say that hemoglobin A1c near 6.5 is a better number in terms of a diabetes control, because if we try to do very rigid control near 6 hemoglobin A1c, risk of hypoglycemia are high. मेरा लास्ट सवाल है कि जिन लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जिनका CRP 1 से ज़्यादा है, 2 के आसपास है, जिनको फास्टिंग इंसुलिन ज़्यादा है, जिनका बॉर्डरलाइन ब्लड प्रेशर है, बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ है, यानी कि शुगर उनका 100 से ज़्यादा है, 126 से कम है, so they are all accumulation of pre-diabetic, pre-hypertensive, little bit more TG, less HDL. इस स्टेज पे हम बोलते हैं कि हार्ट डिसीज स्टार्ट हो जाती है. तो क्या माइक्रोवैस्कुलर डिसीज यानी कि नेफ्रोपैथी भी स्टार्ट हो जाती है? बिल्कुल. बहुत सारे पेशेंट को मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हम माइक्रोएल्बुमिन टेस्ट करें तो दैट इज द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ स्टार्ट ऑफ किडनी डिजीज इन मेटाबॉलिक सिंड्रोम. मोर कंपोनेंट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम आर प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर पेशेंट, हायर इज द रिस्क ऑफ फाइंडिंग माइक्रोएल्बुमिन. और अगर माइक्रोएल्ब्यूमिन पॉजिटिव है आज की डेट में, तो क्या हम इसको अगर रिवर्स कर सकते हैं तो कितने दिन में रिवर्स कर सकते हैं? चाहे ACE इनहिबिटर से करें, चाहे एयर ब्लॉकर से करें, चाहे SGLT2 इनहिबिटर से करें, तो कितने दिन में रिवर्स कर सकते हैं? माइक्रोएल्ब्यूमिन रिवर्स करने के लिए हमें मल्टी प्रॉन्ज अटैक करना पड़ेगा, विच मीन्स डाइट में कंट्रोल फॉर शुगर, लिपिड कंट्रोल, गुड ब्लड प्रेशर कंट्रोल and medication with ACE inhibitor receptor blocker. कितने दिन में कंट्रोल कर सकते हैं ये डिपेंड करता है कि हम at what stage of these metabolic syndrome we start acting for controlling. If the metabolic syndrome is persisting for many years and then we start controlling it, it will take a longer time as compared to if we act early for control of microalbuminuria. तो ऐसा भी होगा कि ये रिवर्स, जैसे मैंने रिवर्स कर दिया, माइक्रोएल्ब्यूमिन डिसअपियर हो गया और हमने फिर बदपरहेजी चालू कर दी, तो फिर चालू हो जाएगा? Yes. So once the microalbumin is controlled, all metabolic factor control remain to continue. Otherwise, the moment other metabolic factor will increase, again there is a risk of microalbuminuria. Is bilateral hydronephrosis a CKD? नहीं जी, वो तो ऑब्स्ट्रक्शन है. क्या आपको पेनिसिलिन के साइड इफेक्ट पे डेफिनेटली आप टीका लगवा सकते हैं. गिलबर्ट सिंड्रोम के बारे में हम कल बात करेंगे. मेरे बर्थ एक किडनी से, मेरे को एक किडनी है, तो क्या मतलब है उसका? नहीं, there are good number of 2 to 3% population who has got a single kidney, but normal since birth. Most of the patients do not have any long-term consequences, but sometimes because single kidney has got
other associated problem in a other kidney, if it is whether that is very small kidney or ectopic, then these are associated with high chance of a blood pressure and other abnormalities. So single normal functioning kidney in absence of a opposite disease kidney in a normal sense does not produce any problem. Here, from last 3 years, I have a chronic tubulointerstitial nephritis. My creatinine is 2.24. It is stable from last 3 years. And I took first dose of vaccine. I had corona in September. Please suggest what to do. Go ahead with the second dose of corona. There is no problem with that. The last question which comes is कि furosemide का क्या रोल है CKD में? कब दें, कब ना दें? जैसा अभी हम लोगों ने बात करी, furosemide usually has no role in tubulointerstitial disease because there neither it is can be used as an antihypertensive, nor there is a need of increasing the urine volume, which is already there. In a glomerular disease related to chronic kidney disease, if there is a significant edema or if the blood pressure is uncontrolled, then in those situations we use diuretic. Dose and the frequency needs to be titrated depending upon degree of edema and degree of blood pressure uncontrolled. So ये थे प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार अग्रवाल, जिन्होंने इतने अच्छे ढंग से वर्ल्ड किडनी डे मनाया आप लोगों के लिए कि आप सोच नहीं सकते। अगर आपने आज के दिन में कोई गिफ्ट देना है किसी को महाशिवरात्रि के दिन पे, तो इसका लिंक भेज दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और अपनी किडनी को बचा सकें। इट इज़ नॉट, हम नहीं चाहते आगे जाके लोग डायलिसिस पे जाएं, रीनल ट्रांसप्लांट पे जाएं, क्योंकि किडनी की बीमारी को बचा जा सकता है, रोका जा सकता है, संभाला जा सकता है। सो मेरे को आई say thank you to you, Dr. S.K. Agarwal, for coming here and educating our people. That's all for today. We'll be back tomorrow at 7 p.m. with another show. Keep watching Med Talks with Dr. KK. Namaskar. Namaskar.